तो नमस्कार, शुभ संध्या, संध्या वंदन। जन विकास महासभा और सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित जूलॉजी क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग एंडोक्राइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बातचीत करेंगे। जैसे द सिक्रीशन ऑफ ADH इज इनहिबिटेड बाय ऑप्शंस आर इमोशन एंड स्ट्रेस, निकोटीन, alcohol and morphine. Answer is alcohol. Alcohol inhibits the ADH secretion. The releasing hormones are produced by testis, pancreas, pituitary, hypothalamus. The answer is hypothalamus. Releasing hormones are produced from hypothalamus. Secondly, sexual characters in males develop under the influence of estrogen, testosterone, GH, FSH. मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होते हैं। फंक्शन ऑफ थाइमस इज ऑप्शंस आर इम्यूनिटी, ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ RBC, emergency hormone. Answer is immunity. Thymus is responsible for processing of lymphocytes to form T lymphocyte, which is responsible for humoral immunity. Addison's disease is caused by under-secretion of ACTH, insulin, cortisol, adrenaline. Answer is ACTH, adrenocorticothyrotrophine. The pituitary gland does not control the secretory activity of thyroid. Thyroid is controlled by TSH. Adrenal cortex is controlled by ACTH. Testis is controlled by FSH and LH. So the answer is adrenal medulla. Adrenal medulla is controlled by sympathetic nerves, but no control of anterior pituitary. Crohn's disease is caused by the over-secretion of ADH, ACTH, aldosterone, oxytocin. Crohn's disease is due to over-secretion of aldosterone. The reabsorption of water in the kidney is under the control of ADH, ACTH, LH, STH. Answer is ADH. ADH of the posterior pituitary controls the reabsorption of water from the distal tubule of the uriniferous tubules. Oral contraceptive pills contain FSH and LH, progesterone and estrogen and all. The answer is a combination of progesterone and estrogen. But at this level I would like to tell you कि एक और कंट्रासेप्टिव पिल मार्केट में है सहेली, जो कि एक सिंथेटिक केमिकल सेंट्रोमान से बना हुआ है, CDRI ने बनाया था उसमें ये कॉम्बिनेशन नहीं है, बाकी में ये प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन रहता है। Parathormone is secreted during increased blood calcium level, decreased blood calcium level, increased blood sugar level, decreased blood glucose level. Answer is decreased blood calcium level. Next question is, diabetes mellitus is due to lack of starch in blood, ADH reaching in kidney, insulin in blood, trypsin. Diabetes mellitus is due to lack of insulin. A gland having endocrine as well as exocrine function is pituitary, thyroid, pancreas, adrenal. Pancreas is the answer because pancreas has both exocrine and endocrine part. Exocrine part तो secretory acinous cells होते हैं जो कि digestion के लिए pancreatic juice secrete करते हैं, और एंडोक्राइन पार्ट आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं जो ग्लूकागॉन, इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन हार्मोन लिबरेट करते हैं।
एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर इज ड्यू टू ओवर एक्टिविटी ऑफ थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल कॉर्टेक्स। आंसर इज थायराइड। ओवर एक्टिविटी थायराइड के होने से एक्स ऑप्थेल्मिक गॉइटर हो जाता है, जिसमें आंखें बाहर को उभर आती हैं, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, बीएमआर बढ़ जाता है, एनिमल हड़बड़ी में रहता है और वेट लॉस होता है। तो इस प्रकार ये एंडोक्राइन के क्वेश्चन समाप्त हुए। कुछ पर्यावरण के बारे में आपसे बात करना चाहेंगे। असल में पर्यावरण संरक्षण के बारे में अधिकांश लोग कुछ किताबी बातों पे ही सीमित हैं कि पेड़ कटने ना गलत है, वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ नहीं काटना चाहिए। वो तो एक एस्पेक्ट है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी बातें हैं जो कि कई किताबों में नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और हमें अपने रोजमर्रा की जिंदगी के पर्यावरण में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें प्रभावित करती हैं, इसे देखना पड़ेगा। जैसे पहले हमारे हिंदुस्तान में जो मकान बनते थे उनमें क्रॉस वेंटिलेशन होता था, खिड़की होती थी, रोशनदान होते थे। उस समय जो मच्छर मारने के लिए और मच्छर को भगाने के लिए जितने भी मॉस्किटो रेपेलेंट थे वो आए मार्केट में, उन्होंने मच्छरों से बचाव तो हमारा किया। लेकिन इस बीच हमारे हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी बदल गई और मकान और ऑफिस जो भी बनते हैं अब वो ऐसे बनते हैं कि उसमें खिड़की रोशनदान समाप्त हो गए, एयर कंडीशनर शुरू हो गए, एसी शुरू हो गया, रात में कमरा बंद हो जाता है। और कमरा यदि बंद है, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, तो उसमें मॉस्किटो रेपेलेंट हानिकारक है। लेकिन ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा, सिलेबस में नहीं लिखा, इसलिए लोगों को इसका एहसास नहीं है। ऐसे ही शुरुआत में तो डेजर्ट कूलर आया और डेजर्ट कूलर में कमरा तो ठंडा करता था लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता था। उसके बाद एयर कंडीशनर आए। एयर कंडीशनर बेहतर हवा तो देते हैं, बरसात के दिनों में भी चिपचिपाहट नहीं होती है, लेकिन उसके साथ बिजली की खपत भी वो बहुत ज़्यादा करते हैं। और दूसरा, पीछे से उनके जो गर्म हवा निकलती है वो थर्मल पोल्यूशन करती है। तो थर्मल पोल्यूशन करती है, जिसके लिए अब समय आ गया है कि हिंदुस्तान में एयर कंडीशनर की टेक्नोलॉजी में सुधार किया जाना चाहिए। कहीं कुछ ऐसा सिस्टम इंजीनियर लोग निकालें कि पीछे से जो गर्म हवा निकलती है वो या तो जैसे कूलर की खिड़कियाँ होती हैं उसमें पानी गिरता रहता है, तो कुछ इस तरीके की टेक्नोलॉजी हो या स्क्रबर हो, कुछ ऐसा जो कि उस गर्मी को एब्जॉर्ब कर दे। इस टेक्नोलॉजी की जरूरत है। एक बड़ी अजीब सी बात है, पहले हमारे फर्श ज़्यादा चिकने नहीं होते थे, फिर एक फैशन आ गया, फर्श बहुत चिकना बनने लगा। मकान बनता है तो लोग फर्श की घिसाई करते हैं। वॉशरूम में, टॉयलेट में मार्बल लगाना शुरू हुआ, टाइल्स लगाना शुरू हुआ और फर्श बहुत चिकना हो गया। यदि परसेंटेज देखा जाए तो बाथरूम का फर्श गीला रहने से बहुत से बुजुर्ग लोग फिसल करके गिर जाते हैं, उनकी हड्डियां टूट जाती हैं। लेकिन फिर भी हम इसे टेक्नोलॉजी को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। एक बड़ी बेसिक सी टेक्नोलॉजी है पतंग उड़ाना। पतंग उड़ाने में जो मांझा इस्तेमाल होता है, मैंने बरेली में देखा, जो मंजा बनाने वाले लोग हैं, बनाने में उनके हाथ बिल्कुल तार तार हो जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं, नाली जैसा पक जाता है, सेप्टिक हो जाता है, फिर भी वो बना रहे हैं। आए दिन जो चीन से आयातित मांझा है, वो जब पतंग कटती है, सड़क पे जाते हुए जो स्कूटर या वाहन से लोग जा रहे हैं, उनके गर्दन पे लग जाता है, उनकी गर्दन कट जाती है, चोट लग जाता है, और उससे बचने के लिए उन्होंने जरा सा लड़खड़ाए तो एक्सीडेंट भी हो जाता है। लेकिन हम अपने मनोरंजन के लिए मंझा इस्तेमाल करेंगे, कहीं हमें फिर सोचना पड़ेगा इस बात को कि एक थोड़े से मनोरंजन के लिए हम कहीं ज़्यादा नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।